everyone. Welcome back to Live Babi Sabi podcast, a space where we embrace the imperfect, the evolving, and deeply human journey of becoming. There are moments in life when we pause and ask, is everything already written? Or are we here to consciously create our path? Today's conversation is not just about answers, it's about awareness. It's about understanding the subtle energies behind our thoughts, our actions, and the lives we are building every single day. From manifestation and mindfulness to gratitude, giving, and spiritual alignment, we are diving into the spaces that often remain unspoken, yet shape everything within us. Joining me today is Neera Paritoshji, international parenting and life coach and founder of Parenting the Parent. Her work beautifully bridges thought, emotion, and inner transformation. She reminds us that even the smallest shift in awareness can create a powerful ripple in our lives. And let me tell you that Neeraji has been recently recognized with the Rashtriya Ratna Samman for Best Life Coach for Parents, which is a reflection of consistent value creation, her quiet leadership, and meaningful contribution to a bigger vision. Neeraji, you are making India proud. How are you feeling in this session today? Thank you so much for using so many words which are appreciating me or praising me. Thank you so much. Thank you so much for referring this Samman also. This was wonderful. It was really a wonderful experience. What I really want to say that I want to do for something for my nation, for my people. जो मुझे लगता है मुझे 50 साल लग गए समझने में जो भी चीज़ सीखने में आई रियली वॉन्ट दैट पीपल लर्न दैट in lesser time so that that time is saved and used somewhere else. तो 20 years पहले या 30 years पहले ही अगर मुझे समझ आया था ना तो शायद मुझे लगता है हमारे बड़े हमें समझाते थे कि बेटा ये नहीं करते ऐसे नहीं बोलते या कुछ वो हमने सुना ही नहीं. तो आई रियली वॉन्ट specify those things in this podcast so that when you ask questions I'm able to give maximum knowledge to all the people who are listening to us. Thank you so much for giving me a chance. You are most welcome, Neeraji. And you are, as I said, you are already making India proud, and people will be learning so much from you. And that's why we are recording this podcast. So, Neeraji, my very first question comes to you. Like, people often say everything, in life is pre decided. Then why we should work hard? So also, yeah, since you discussed about your process of ask, believe, and receive, and you have always emphasized that act is the most important step. So why is act is the most important step? Please enlighten us. हाँ शिल्पी ये मैं बोलना चाहूँगी बिकॉज आई हैव डन 45 46 ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज ऑल्सो तो कहीं से कुछ मिल जाता है कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. सो इन वन ऑफ द कोर्सेज दे मैंशन दिस थिंग कि आपको जो भी जैसे मुझे आई गॉट दिस सम्मान ना राष्ट्रीय रत्न सम्मान तो उसमें सबने बोला ओ यू आर सो लकी यू गॉट दिस सम्मान. तो मुझे रादर मुझे गुस्सा आया इंस्टेड ऑफ थैंकिंग देम आई थॉट टू माई सेल्फ ओनली कि इतनी मेहनत लगी इतने साल लगे एवरी डे आई एम गेटिंग अप एट 3 o'clock और 4 o'clock आई एम राइटिंग स्क्रिप्ट्स 9 to 10 hours आई एम वर्किंग. मैंने कभी देखा भी नहीं कब बारिश हो रही है कब लोग इंजॉय कर रहे हैं कब क्या कर रहे हैं. मैंने कभी शायद इतने सालों से इंजॉय भी नहीं करा. And then when you're recognized when your efforts are recognized people say you're lucky. तो उसमें डिफरेंस बता देती हूँ बिकॉज मोस्ट पीपल आस्क दिस क्वेश्चन. तो वो होता है कि आप जहाँ भी पैदा हुए हैं जैसे यू टेक लाइक वी हैव टेकन बर्थ इन इंडिया आपके कौन पेरेंट्स होंगे आपकी उस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी आपको सिर से पैर तक कैसी पर्सनालिटी मिलेगी. जैसे वो छोटे बच्चे इतने सारे होते हैं ना हर कोई थोड़ी एक ही टाइप का होता है या सब कुछ मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है. खैर चलो उसकी बात में करेंगे. तो दैट इज़ लक को जो आप चेंज नहीं कर सकते जो आपको भगवान की तरफ से मिला है दैट इज़ लक. उसको हिंदी में एक और जब मैंने कोर्सेज करे थे तो उसमें एक वर्ड यूज़ करा था उन्होंने प्रारब्ध. तो आपका प्रारब्ध आप डिसाइड नहीं करते वो तो भगवान की तरफ से आपको मिला.
अब उसके बाद जो आप एफर्ट्स करते हैं ना, भगवान की तरफ से आपको जो भी मिला है, यू यूटिलाइज दैट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड यू क्रिएट योर लाइफ। मतलब आपको जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट्स कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, गॉड हैज़ गिवन यू अ ब्यूटिफुल वॉइस, आप उसी ब्यूटीफुल वॉइस का कुछ ना करते और उसके बाद मरने का टाइम आ जाता है, मर जाते हैं। लेकिन यू नो योर पेरेंट्स पुट इन एफर्ट्स, लाइक माई प्रोग्राम इज पेरेंटिंग द पेरेंट। तो छोटे बच्चे को तो नहीं पता ना, वो तो पेरेंट्स ही लेके जाएंगे ना। तो पेरेंट्स लेके गए हैं एंड दे आर यूजिंग द बेस्ट कोचेज़ और सबकी हेल्प लेके बच्चे को धीरे धीरे वो बड़ा होके वो भी एफर्ट्स कर रहा है। सो बोथ द पार्टीज आर पुटिंग इन एफर्ट्स। इसका मतलब प्रारब्ध को आपने पुरुषार्थ दिया। पुरुषार्थ मीन्स एक्ट, कर्म दिए आपने एफर्ट्स करे, तो आपका कर्म जैसा होगा वैसा रिजल्ट आ जाएगा। ये मैं पहले भी बोलती थी, ये मैं आज भी बोलती थी। लेकिन आप डिसाइड कर लो ना, कर्म तो हर फील्ड में हो सकता है। जैसे आपने जो हमने कहा था, एक प्रोसेस है, आस्क, बिलीव, रिसीव। बस पहले आप क्लैरिटी कर लो कि आस्क में चाहिए क्या। जैसे मैंने कहा मैंने बेस्ट सिंगर बनना है, तो आपका आस्क बेस्ट सिंगर बनना हो गया ना। अब वो मनी और वो फिजिकल एस्पेक्ट और बाकी सारे एस्पेक्ट्स तो साइड हो गए ना। तो आपने अपना आस्क डिसाइड कर लिया, आप उसके हिसाब से बाकी चीज़ें डिसाइड होंगी और आपका एक्ट और किस फील्ड में जाना और किस डायरेक्शन में जाना है वो इससे डिसाइड होगा। Okay, Neeraji. What it all boils down to luck is built on consistent efforts, right? हाँ So, Neeraji, हाँ your first book is titled Ripple of Words. हाँ हाँ What हाँ। inspired you to write it, and why did you choose this particular theme? अच्छा, इफ़ यू रिमेंबर वी सेड वी हैव विजिबल रेल्म एंड इनविजिबल रेल्म। विजिबल रेल्म में आपको मकान चाहिए, आपको जो भी चीज़ आपको दिखती है, आपको पैसा चाहिए, आपको कार चाहिए, जो भी था हमने कहा था विजिबल रेल्म में। बट यू रिमेंबर वी सेड विजिबल रेल्म एंड इनविजिबल रेल्म गो साइड बाय साइड। ऐसा नहीं है कि एक चल रहा दूसरा नहीं चल रहा। तो इनविजिबल रेल्म में जो भी हम एक टूल सिर्फ हमने किया, ग्रैटिट्यूड, कि आपके पास जो भी कुछ है आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है। ग्रैटिट्यूड मीन्स सेइंग थैंक यू। फिर उसमें हमने कुछ रूल्स करे, अच्छा लिख के करना है, फिर मॉर्निंग में करेंगे तो उसका ज़्यादा असर होगा, जो भी रूल्स करें। तो अभी हम सेकेंड टूल कर रहे हैं। सेकेंड टूल इज़ वर्ड्स। तो वर्ड्स मतलब आप अपने मुंह से जो भी वर्ड्स निकाल रहे हैं ना, आप ये समझिए कि जैसे हमारे बड़े हमें समझाते थे कि नहीं नहीं बेटा, 24 आवर्स में ना आपके मुंह पे एक बार सरस्वती ज़रूर बैठती है, तो आप ना अपनी लैंग्वेज ध्यान रखो। तो हमने वो सुना ही नहीं। सो हियर आई एम सेइंग, आफ्टर डूइंग दोज कोर्सेज, हियर आई एम सेइंग वॉट एवर यू आर सेइंग। कोई ऊपर बैठा हुआ है तथास्तु कहने के लिए। तथास्तु मीन्स आप जो बोल रहे हो वो हो जाएगा। लाइक इफ़ यू यूज़ पियर्सिंग वर्ड्स इवन फॉर योर चाइल्ड, वो पहली बात वो याद रखेगा कि आपने इतने साल पहले भी उसको ये कहा था। आई हैव द लाइव एग्जाम्पल ऑफ सो मैनी पीपल हु आर बेड रिडन और हु हैव डिजीजेस, क्योंकि वो भुला ही नहीं पाए उनको जो उस वक्त वर्ड्स बोले गए। तो दैट इज़ वाई वर्ड्स आर सो इम्पॉर्टेंट एंड दैट मोटिवेटेड मी और रादर फोर्स्ड मी टू राइट दैट बुक रिपल ऑफ वर्ड्स। क्योंकि मैंने इतना वर्ड्स की वजह से इतना दुख देख लिया, या वर्ड्स की वजह से अपने पेरेंट्स को या इतने लोगों को सफ़र करते हुए देख लिया। दैट इज़ वाई आई रोट दैट बुक। तो वर्ड्स आर सो इम्पॉर्टेंट। तो आप अपने बच्चे को वो 92% ले आया और आप कह रहे हैं 98% क्यों नहीं लाया, 99% क्यों नहीं लाया, एंड यू यूजिंग द वर्ड बेकार है, बकवास है, इसको कुछ नहीं आता। आपने जो बोल दिया ना, इसकी समझ में तो कुछ नहीं आता, आपने जो वर्ड्स यूज़ करे 100% अब वो वैसा ही हो जाएगा, लेकिन आपके लिए, क्योंकि आप वो वर्ड्स बोल रहे हैं ना, बाकियों के लिए नहीं। Understood. So words have power, and you have to speak positively, even with yourself. हाँ Wow, wow. This is such a wonderful takeaway from this conversation. So Neeraji, we all know that anger impacts our health negatively, right? So does it also create a loss on spiritual level? जैसे एंगर, इतना कुछ क्यों हो रहा है एंगर मैनेजमेंट पे, और वो तो है ही डिस्ट्रक्शन। आप जिससे गुस्से में बोलेंगे आपको गुस्से में याद ही नहीं रहेगा कि आप क्या वर्ड्स बोल रहे हैं, और वो वर्ड्स कभी भूलेगा नहीं। अब बाद में जो मर्जी बोलते रहो, हो उस वक्त मुझे गुस्सा आया हुआ था, मैंने बोल दिया, कोई नहीं याद रख रहा। ये वाली बात आपकी, प्लीज नो बडी इज़ लिसनिंग। एंगर मैनेजमेंट क्यों करनी है, तो स्पिरिचुअल लेवल पे या विजिबल इनविजिबल रेल में वो भी साथ साथ कर देती हूँ। सो हियर इट इज़ सेड कि आपके दिन में 24 आवर्स हैं।
आप कितना टाइम, मतलब अगर कहें कि मोर देन 50%, तो 50% तो 12 आवर्स होता है ना। अगर आप 12 आवर्स से ज़्यादा खुश रहे तो वो आपको ज़्यादा खुश में गिना जाएगा। लेकिन आप 12 आवर्स से ज़्यादा आप गुस्सा ही चढ़ा रहता है आपको हमेशा, आप बोलते ही गुस्से में, बच्चों को भी कुछ भी बोल रहे हैं, घर में भी कुछ भी बोल रहे हैं, ऑफिस में कुछ भी बोल रहे हैं, तो दैट गोज़ अगेंस्ट यू। तो हमने ये कहा था कि ग्रैटिट्यूड में अगर आपको एक वर्ड याद हो, हमने कहा था सुच्ची कमाई। सुच्ची कमाई मतलब हम जो भी ग्रैटिट्यूड करते जा रहे हैं, सुबह करते जा रहे हैं, लिख लिख के करते जा रहे हैं, तो वो हो गई आपकी सुच्ची कमाई। मतलब मनी यहाँ पे फिजिकल टर्म में, विजिबल रेल में, और सुच्ची कमाई इन इनविजिबल रेल। अब वो सारी माइनस होती जाएगी इफ़ यू क्रिटिसाइज समबडी, नंबर वन। और सेकंड हो गया, अगर आप गुस्सा करते जाते हैं, मतलब आपने एक गुस्सा करा तो आपकी वो 10 जो आज आपने सुच्ची कमाई करी थी वो सारी माइनस में हो गई। फिर आपने नेक्स्ट गुस्सा करा, वो वाली माइनस में होगी। इसका मतलब जो आपने एफर्ट्स करे ना, तो मतलब आप वो कमाना पड़ता है ना। सुच्ची कमाई भी तो ऐसे थोड़ी आ जाएगी, आप बैठोगे 30 मिनट्स बैठोगे, 1 घंटा बैठोगे तब जाके होगी ना, तो वो सब वेस्ट जा रही है। तो इसलिए भी करना पड़ता है। एंड पीपल से 24 आवर्स में से 8 घंटे तो हम सो रहे होते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बाकी भी तो 16 आवर्स बचे, अभी उसकी भी बात करती हूँ। 16 आवर्स में से मोर देन 8 आवर्स तो हाफ से ज़्यादा होना चाहिए कि आप अपना मूड ठीक रखें। तो उसके लिए हम एफर्ट्स भी तो मतलब कितने सिंपल सिंपल टूल्स हैं। जैसे आपको गुस्सा चढ़ा होता है, सामने वाला आपको बोलता है अच्छा पहले ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो, तो थोड़ा रुको गुस्सा करने से पहले थोड़ा सा पॉज लो एंड देन से समथिंग। तो आप जो भी बोलोगे उसके बाद व्हेन यू टेक अ पॉज आप बेटर बोलते हो। एक और चीज़ होती है, एक बड़ा अच्छा टूल होता है रेडी रेकनर जिसको बोलते हैं। रेडी रेकनर मतलब आपको कोई म्यूज़िक पसंद, म्यूज़िक इज़ द बेस्ट थेरेपी। आपको कोई गाना बड़ा पसंद है, कोई डांस वाला गाना बड़ा पसंद है या कुछ और पसंद है, आप प्लीज़ अपने पास वो हैंडी रखो। जैसे ही आपको गुस्सा आए या आपका मूड ऑफ हो, आपने फटाफट वो गाना सुनना है, या आपका जिससे भी मूड ठीक होता है। जैसे बच्चों की वीडियोज़ देख के हम बड़े खुश हो जाते हैं ना, छोटे बच्चों की, क्योंकि दे आर सो प्योर, प्योर सोल्स बोलते हैं उनको। तो अगर आपको वो अच्छा लगता है, आपको जो भी अच्छा लगता है, प्लीज़ प्लीज़ डू दैट। नहीं तो एंगर कर करके आप सारा माइनस में कर लोगे, और बिसाइड्स रीचिंग इन द हॉस्पिटल आईसीयू आप और भी वो कर लोगे, आपको डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। Okay, Neeraj. So I have jotted down two things that whenever you are angry, you shouldn't react. Instead, you should take a pause and then speak. And another thing which you said is, I mean, you must listen to a song, maybe something that makes you happy. Happy, हाँ। Wow. Wow. So I don't know. I think I have heard somewhere in movie as well that whenever you are angry, count to 10 and then react like one, two, and then जब react. So जब 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 हमारे बच्चे छोटे थे ना, हमें कोई भी सीनियर स्टाफ रूम में समझाता था, मुझे याद आ गया, वो बोलते थे यही 1 to 10 काउंट करो, बच्चे को मारते नहीं है वो, तो हम बोलते थे अच्छा 1 2 3 4 10 करके ये फिर थप्पड़ लगाते वो कहते थे नहीं तब तक तो आपको गुस्सा उतर जाना चाहिए, तो आप 100 तक I काउंट don't know कि ये कितना practically work करेगा, but yes, it will help, right? Ultimately, it will help. So Neeraj ji, you mentioned that people often say we should donate, right? But many don't actually, take a action. So does not donating or giving back affect us in any way? अच्छा वो ना डोनेशन जो भी वर्ड किसी ने बनाया या दान बनाया, तो दान में भी बड़े सारे वो टाइप्स भी करे हमने। विद्या दान, धन दान तो वो काफ़ी लोग करते हैं, जल दान, अन्न दान, श्रम दान, हमने बड़े सारे वो दान करे। तो उसमें डोनेशन ऑफ एनी काइंड विल डेफिनेटली हेल्प यू, वो तो स्पिरिचुअलिज्म में भी सिखाया, रिलीजन उसमें भी सिखाया। पर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दी नई चीज़ दे रही हूँ। एंड वॉट एवर जो मैंने उसमें सीखी कि वॉट एवर यू वॉन्ट डोनेट दैट। आपको मनी चाहिए तो उसमें है डोनेट मनी। आपको कपड़े चाहिए बहुत अच्छे, डोनेट क्लोथ्स। जो चीज़ मुझे चाहिए वो डोनेट कैसे करूं? तो जैसे मनी के सेंस में बोलते हैं कि आप कहते तुम्हें तो लाखों करोड़ों रुपए चाहिए और आपका दिल इतना छोटा, आप किसी को 10 रुपए भी नहीं दे सकते, तो कॉइन्स नहीं देने। तो उसमें बोला जाता है आप अपने पर्स में 10 के नोट्स, या आपका जितना भी दिल है 50 के नोट्स, या जितने भी नोट्स है ना, तो नोट्स आपने रखे और आपने किसी फेमिलियर को नहीं, अनफेमिलियर को, कि जिसको उसकी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है और आपको पता है कि वो खाना ही लेगा या वो कुछ, या आप चाहते हैं मेरे घर में कभी अन्न की कमी ना हो, तो आपके लिए वो है कि आप क्या डोनेट करोगे, अन्न।
तो एक और चीज़ उसमें होती है, डोनेट करते वक्त आपकी फीलिंग क्या है। जैसे आप बहुत गुस्से में, क्या मुसीबत है, मैं डोनेट करना पड़ रहा है, और आपने जो भी डोनेट करने के लिए जो भी चीज़ें मंगवाई थी, आपने उसको पैर मारना शुरू कर दिया और आप गुस्सा करते रहे। आप वो घूम के जो आप देते हैं वो घूम के आपके पास वापस ज़रूर आता है, ये हम कर चुके हैं। तो लेकिन एक और चीज़ है, इट कम्स मैनी फोल्ड्स, या बहुत कम होके आता है। जैसे हो सकता है आपको 5000 करोड़ मिलने हों, लेकिन अब आपको 5 करोड़ मिले, आप 5 करोड़ में खुश हो गए, वो अलग बात है। लेकिन आपके लिए तो यूनिवर्स ने इतने सारे वो पैसे डिसाइड करे हुए थे ना, तो वो मैनी फोल्ड्स होगा या वो कम होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन योर फीलिंग। जो हम बात करते हैं ना, कि आपकी वाइब्रेशंस कैसी हैं उस टाइम पे, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो इससे भी डिसाइड होता है। एक और चीज़, जब भी डोनेट करते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि आप खुद अपने हाथ से डोनेट करें। जैसे आपको याद है, हम बच्चा बीमार होता था या कुछ, वो सब बोलते थे ना, हाँ आप कुछ ना उसका हाथ लगवा के आप डोनेट कर दो। तो हाथ लगवाना इज़ सो इम्पोर्टेंट। आपने किसी को, अपने ड्राइवर को बोल दिया, हाँ ये ले 500 रुपये, सामान ले लियो और वो ना उसको, गाय को कुछ खिला दियो, चिड़ियों को दाना डाल दियो, नहीं, वो आपको अपने हाथ से डालना है। मतलब आपके कर्म और आपका डोनेशन, दोनों चीज़ें अगर अपने हाथ से होंगी तो ही असर करें। Okay, okay. So the more you give with intention and happiness, the more you get back multiplied. And ultimately you have to do it yourself. Don't ask someone to do it on your behalf, right? Okay, perfect. So Neeraji, we often talk about gratitude. That gratitude, you are always, like talking about gratitude, practice gratitude every day. But if suppose there are two people who are following the same gratitude practice, and one gets results and while the other doesn't. So what could be the reason behind that? How does that work? अच्छा, एक तो हम सोचते हैं ना, बस मैंने आज ग्रैटिट्यूड शुरू करा है, बस आज ही मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाने चाहिए। नहीं मिलेंगे, उसमें टाइम लगेगा। अब वो मिनिमम टाइम जैसे कहते हैं आपको दिखना शुरू हो जाएगा। वो एक होता है 21 डेज़ कंटिन्यूअसली, या लोग रखते थे ना, चलिया रखते हैं कि हाँ 40 डेज़ कंटिन्यूअसली हम ये सब करते हैं। तो वो 21 डेज़ और 40 डेज़ तो वो है ही, लेकिन उसमें भी हमेशा ही होता है। ये होता है, आप दोनों फ्रेंड्स हैं या जो भी 3-4 फ्रेंड्स हैं और सब इकट्ठे शुरू करते हैं बड़े जोश में कि अच्छा हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, अच्छा यहाँ जाके हम ये डोनेट करेंगे, यहाँ जाके हम ये काम करेंगे। लेकिन उसमें से किसी एक को रिजल्ट मिलता है, बाकियों को नहीं मिलता। देयर कैन बी मेनी फैक्टर्स, बट आई रियली फील देयर कैन बी वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड दैट इज़, आप जितने भी साल के हैं, आप 20 ईयर्स के हैं, 30 ईयर्स के, 40 ईयर्स के, जितने भी साल के हैं, जो आपने 40 ईयर्स तक, आज आप 40 ईयर्स के हैं, आपने पिछले 40 ईयर्स में भी तो कुछ करा है, उसका भी तो फल मिलेगा। तो आप सोचते हैं बस मैंने आज कर दिया, मेरा मेरा पिछला सब, वो जो बोलते हैं ना कर्मों का हिसाब होगा, तो वो हिसाब किताब ज़ीरो नहीं हो सकता। हाँ, कि लेकिन आप इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करते हैं, इतना ज़्यादा थैंक यू बोलने लग गए। जैसे हमने एक चीज़ कही थी, आपने ये जो स्टार्ट किया था, वाबी साबी नाम रखा है ना आपने इसका, तो जिसमें हम भी इतने खुश हो रहे हैं, एवरी डे वी आर टू यू और लिसनिंग टू यू। तो वाबी साबी इज़ अ टर्म विच इज़ यूज्ड इन जापानीज़ कल्चर। तो जापानीज़ कल्चर में एक और टर्म यूज़ होती है जो हमने फर्स्ट पॉडकास्ट में बात करी थी, होपोनोपोनो। होपोनोपोनो अब बड़ा पॉपुलर भी हो गया है। तो उसमें 4 ही तो सेंटेंसेस होते हैं। अगर आप वो 4 सेंटेंसेस रोज़ बोलें और दिल से बोलें, फीलिंग्स के साथ, 100% उसमें असर होगा। और वो 4 सेंटेंसेस होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी तो हमारे उसमें भी तो बोलते थे, भगवान से माफ़ी माँग लो, माफ़िया माँग लो, हैं, और मतलब हम ग्रैटिट्यूड कर ही रहे हैं, शुक्राना, जो शुक्राना कर रहे हैं। और लव यू मतलब जो आप क्रिटिसाइज़ कर रहे थे किसी और को, क्यों कर रहे थे? ईदर यू वर जेलस, और कि उन्होंने नई कार ले ली, उन्होंने नया घर ले लिया, आपने बोलना शुरू कर दिया, वो तो नोट छाप रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं, तो यू वर जेलस। या फिर आपको जो भी था उन पे गुस्सा आया हुआ था। जब आप किसी को आई लव यू कहते हैं ना, तो वो फीलिंग्स आपकी नहीं हो सकती। तो ये चारों सेंटेंसेस इतने इम्पॉर्टेंट हैं, आप जितनी बार बोल सकें, लेकिन कॉन्शियसली बोलना है। तो उसके लिए बड़ी सारी प्रैक्टिसेस भी होती हैं कि आप कॉन्शियसली लिख के, हमने तो अभी एक ही प्रैक्टिस करी ना, लिख के 5 × 5 55 टेक्निक्स और 3 6 9 टेक्निक्स, ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं।
वो हम फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन उसका असर होता है जब आपने इतनी माफ़ियाँ मांग ली ना, तो हो सकता है आपने 30-40 ईयर्स आप बहुत गंदे रहे हैं और इस वक्त आपका जो भी प्लान हुआ हुआ था कि आपका बहुत बुरा ये होना था, तो हमने सुना तो हुआ है इतने एक्सीडेंट्स में सबको इतनी ज़्यादा चोट लगी और एक जने को इतनी कम चोट लगी, ज़रा सी ब्रूसेस हुई और ही गॉट सेव्ड। तो वो हुआ कैसे? वो शायद इससे हुआ होगा क्योंकि आपने इतनी माफ़िया मांगी, प्लीज़ भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतना गलत किया, मैंने इतना गलत किया है, उसका असर होता है। तो मिरेकल्स के लिए भी पीछे कुछ वर्क बिल्कुल, चल रहा बिल्कुल। है, राइट? मिरेकल्स के लिए क्या आप ना एक और चीज़ उसके लिए बात करूँगी। चलो आप पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो, फिर उसके लिए उसकी भी बात करती हूँ। मैं पहले वो चारों सेंटेंसेस रिपीट करना चाहती हूँ, लाइक आई एम हाँ, हाँ। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, देन आई लव यू एंड थैंक यू नहीं, इज आई लव यू लास्ट सेंटेंस है, थैंक यू, फिर आई ओके, लव थैंक यू एंड देन आई यू। लव यू। हाँ, ओके, हाँ। सो दीज आर द तो फोर वो सेंटेंसेस। 4 हैं लेकिन वो चारों बोलने हैं, रोज़ बोलने हैं। अब आप वो लोग करते हैं 108 टाइम्स या कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि इतने टाइम्स मैंने लिखना है या इतने टाइम्स मैंने बोलना है और बोलना वही है, वही मॉर्निंग के टाइम। लेकिन उसमें ये है कि आपकी कंसंट्रेशन तो हमारी 2 मिनट नहीं हो पाती, 3 मिनट नहीं हो पाती, इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा ना, 108 टाइम्स करना है। तो आपने कोशिश करनी है अपनी कंसंट्रेशन को बार-बार वो लाना है, तो मेडिटेशन की थोड़ी-सी अगर प्रैक्टिस हो, तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, ओके। So नीरज जी, since we are talking so much about on all these things, so people generally say that feeding animals or birds, bring positive outcomes, right? So how valid is this belief and how does it actually help? मतलब जब हम help करना जाएं, तो whether we should, be helping humans or we should be helping, animals or birds. So how does all this, help? I mean, help us ultimately. So we would like to clarify this. असल में ये ना सारा रिलिजन में डाला हुआ है। जबकि ये अगर आप रिलिजन को किसी रिलिजन को नहीं भी मानते, तो भी आप करके देखो। मैं तो बोलती हूँ कि आप खुद पहले कर लो 21 डेज़ कंटिन्यूअसली या 40 डेज़ कंटिन्यूअसली। अगर इम्पैक्ट ना हो रहा तो मत करना। तो ऐसा नहीं कि आपने 40 डेज़ किसी डॉगी को खाना खिला दिया बाहर स्ट्रे डॉग को, तो 41 40 उसको क्या पता कि आप 40 डेज़ के लिए उसको खाना खिला रहे थे क्योंकि आपको करोड़ों रुपए चाहिए थे। तो वो तो नेक्स्ट डे भी आएगा आपके पास खाना खाने के लिए। तो मतलब जो भी हम अच्छा काम करते हैं ना उससे क्या होता है, एक थोड़ी-सी और बात बता देती हूँ, वैसे हम ये किसी और बार करेंगे कि हमारे ब्रेन में वेव्स होती हैं। तो आपकी वेव्स उस वक़्त कौन-सी चल रही हैं जिसको अल्फ़ा वेव्स, बीटा वेव्स, गामा वेव्स ऐसे बोलते हैं। जैसे-जैसे आप गुस्सा करते हैं ना उस वक़्त दूसरी वेव्स चल रही होती हैं। जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बहुत यू आर एट पीस, तो आपकी गामा वेव्स चल रही होती है। तो इसमें यही होता है कि आपकी वेव्स उस वक़्त जैसी चल रही है ना, आप वैसी ही चीज़ अट्रैक्ट करोगे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हमने करा हुआ है। और ये सब कोई आप इंडियन कल्चर को नहीं भी मानते तो कोई बात नहीं, ये तो सीक्रेट बुक में है, वो तो इंग्लिश में लिखी हुई है, अंग्रेज़ों की, हमारे तो है भी नहीं। तो अगर आप मतलब लोग सीक्रेट बुक पढ़े ना तो उसमें ये तो यही यही सारी चीज़ें ही वो करी हुई हैं। तो आप जो बर्ड्स और एनिमल्स कह रहे थे ना, सो इट मीन्स जिसको खाना नहीं मिला या जिसको वो नहीं मिला वो बोल नहीं सकते, लेकिन ब्लेसिंग्स तो मिली ना उनकी तरफ से। तो जो वो सारी ब्लेसिंग्स मिलती है ना, एनीबॉडीज ब्लेसिंग्स, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आप कह रहे हैं ना ह्यूमन बीइंग्स को, तो वो वाली ब्लेसिंग्स भी काम करेंगी और ये वाली ब्लेसिंग्स भी काम करेंगी। So Neeraji, you were talking about blessings, and what I have learned through this conversation is like blessings matters at the end of the day, no matter you are getting from human or animals or birds, right? So सिर्फ हाँ, एक बात शिल्पी और बोलना चाहूँगी, yeah, वो जो हम yeah, बात कर please. रहे थे ना पेरेंटिंग द पेरेंट मैं बोल रही थी, तो Mm-hmm, आपको अगर याद हो तो हमने कहा था ग्रैटिट्यूड 3 लोगों का, तो 3 तो आपको करने ही पड़ेंगे। एक है mm-hmm, पेरेंट्स का जो सोर्स रिलेशनशिप हम बोल रहे थे, फिर था mm-hmm. अभी इसके बारे में बात करूँगी कि आपने जो भी पुराने में जो भी गलत कर दिया है या आप माफ़ी माँग रहे हो, तो आपके 5 एलिमेंट्स थे। आपको याद है हमने कहा था जल, पृथ्वी, सूर्य ऐसे करके वायु, है ना? ये इनके थ्रू ही जो आपने बुरा करा हुआ है ना वो कैसे ख़त्म हो जाएगा, जो भी हमारे अंदर भरा हुआ है, सक्सेस नहीं आ रही। और एक टीचर्स का मतलब जो भी आपको कुछ सिखा रहा है, तो उसका ग्रैटिट्यूड। तो इनमें से एक जो सबसे पहला था वो था सोर्स रिलेशनशिप का। अगर आप Mm-hmm. अपने बच्चे को डाँटते ही जा रहे हो और आप उसको जैसे हमने फर्स्ट एग्ज़ाम्पल लिया ना, योर चाइल्ड हैज़ गॉट 92% मार्क्स और आप लड़ रहे हैं उससे कि अच्छा
98% आने चाहिए, और आपने पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसको, सच पियर्सिंग वर्ड्स विच हैव रिप्ड हिम अपार्ट, इतने गंदे वर्ड्स आपने बोल दिए उसको, और वो शायद 10 साल भी इससे नहीं उठ सकता। आप तो बोलते गए अपने गुस्से में। तो वो जो वर्ड्स आपने बोल दिए ना, वो वर्ड्स का इम्पैक्ट बड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सोर्स रिलेशनशिप से गए हैं। जैसे बाकियों से भी आपने जो भी वर्ड्स लिए, जो सुनता है उस पे भी असर होता है, और जो बोलता है उस पे भी असर होता है, ये भी हम बात कर लेंगे बाद में। लेकिन हाँ, लेकिन ये गए हैं सोर्स रिलेशनशिप से, तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे बहुत ज़्यादा होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखिए। Yeah, So ये and सारे keep करते हैं। thanking your parents, five elements, and your teachers, of course. So, हाँ Neeraji, now, thoda sa, I wanted to touch on manifestation also. That if हाँ someone wants to manifest faster, so what? I mean, what should they focus on, or how do they do things differently? So, एक थोड़ा सा हमें उसके बारे में गाइड कर दीजिए. How to manifest? अच्छा, मैनिफेस्टेशन में ना बड़ी सारी टेक्निक्स और बड़ा कुछ आता है। तो एक सबसे शॉर्ट और सबसे ईज़ी मेथड बता रही हूँ। तो हमने एक ईज़ी मेथड तो ये करा कि आपने लिख के करना है। तो आपको जो चाहिए, आपने वो लिखना है। मतलब जो हम आस्क में बोलते थे ना, क्लैरिटी, तो क्लैरिटी से लिखना है। तो मुझे वो जोक बड़ा अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वो बोलना चाहती हूँ कि आप एज़ अ पेरेंट आप अपने बच्चे के लिए तो बेस्ट ही चाहते हैं ना। आपने कहा मेरे बच्चे के चारों तरफ गाड़ियाँ घूमें, जब वो बड़ा हो, वो ये हो उसके पास, वो हो। तो आप चारों तरफ गाड़ी, वो तो ट्रैफिक पुलिस वाला बन गया। तो वो ट्रैफिक, उसकी ड्यूटी भी वहाँ लगी जहाँ आस-पास इतनी गाड़ियाँ घूमती थी। तो क्लैरिटी से यूनिवर्स को बताना है। और जो चीज़ हम डोनेट करते हैं ना, जैसे हमने कहा जो चीज़ आपको चाहिए वो डोनेट करिए। मतलब आप, यूनिवर्स डज़न्ट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज। उनको कोई चाइनीज़ नहीं आती, जापानीज़ नहीं आती, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश कुछ नहीं आती। दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ज़रूर बहुत अच्छी होंगी और यूनिवर्स के साथ मैच करेंगी, जब भी आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे होंगे या अच्छा कर रहे होंगे। चाहे आप अपने बच्चे के लिए भी कुछ भी बोल रहे हैं, उसको नेगेटिव बोलने से पहले आप खुद नेगेटिव होंगी। ठीक है? जैसे हमारे बड़े हमें सिखाते थे ना कि आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, तो आप गरम कोयला पहले अपने हाथ में पकड़ेंगे ना, अगर आपने किसी और पे भी फेंकना है, तो आपका हाथ भी तो जला। तो यही वाली चीज़ है। तो आपने जो हम कह रहे थे ना, कोड ऑफ कंडक्ट, डूज़ एंड डोंट्स, तो ये सारी बातें जो मैंने आज बोली कि ये नहीं करनी है, ये नहीं करनी है, ये नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है, बुरा नहीं बोलना है, तो वो सारे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है। वो सब फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम मॉड हो गए, हमने बहुत पढ़ लिया है तो वो सारी बातें मैटर नहीं करती हैं। वो मैटर करती हैं, अभी भी मैटर करती हैं। अच्छा, बाकी है मैनिफेस्टेशन फास्ट करने के लिए, जो हम बात कर रहे थे अल्फ़ा वेव्स की, आपके माइंड में क्या वेव्स चल रही हैं। तो हमने सुना तो वही है कि सोने से पहले आप जो सोच के सोते हैं तो 100% उस पे हो जाता है। जैसे हमने कहा था, लोग कहते हैं हम तो 8 घंटे सो रहे हैं, 24 आवर्स में से असर कैसे होगा। तो वो जो 8 घंटे आप सो रहे हैं, तो सोने से पहले आपकी जो भी थॉट थी ना, तो वो 8 घंटे वही थॉट मानी जाएगी। तो पहले तो रिलीजियस उसमें बोला जाता था कि आप राम नाम लेके सोइए, या आप कोई भी पूजा करके सोइए, आप जिस भी रिलीजन के हैं। तो आप जो 5 घंटे सोए, 8 घंटे, जितने भी घंटे आप सोए, तो वो सारा टाइम उसमें ही काउंट होगा। तो आप समझ लीजिए कि यूनिवर्स हिसाब का बहुत पक्का है। आपने किसी के साथ बुरा किया है तो 100% वो आपके साथ भी बुरा होगा। लेकिन अब यही वाला जो है, जो हम कह रहे हैं कि ये फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब उसमें क्या है कि एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि सोने से 1 घंटा पहले आपको मोबाइल साइड में रखना है। क्योंकि हम कहते हैं मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, या टीवी का एडिक्शन हो गया है, तो 1 घंटा तो आपको निकालना। एक्सक्यूज मी नीरज जी, क्यों अगर हम मोबाइल में कोई अच्छी पॉजिटिव रील देख के सोए तो तो वर्क नहीं हाँ, करेगा? ये भी हो सकता है, लेकिन वो जो आपने एक होता है खुद से बात करना, और एक होता है कहीं और से कुछ लेना। आप कर लो पूरा दिन पॉजिटिव रील्स देख लो, बहुत अच्छी चीज़ें देख लो। अब वो पॉजिटिव तो है ही आपके पास। बस अब आपने वो सोशल मीडिया और सबको, लोग ना जनरली क्या देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, और अब न्यूज़ में मैं नहीं बोलना चाहती नेगेटिव कितना आता है, आपने क्या उससे गेन करा। एंड द चिल्ड्रंस माइंड इज़ लाइक अ स्पॉन्ज, तो वो सारा कुछ उससे ले लेते हैं। तो इसलिए हम मना करते हैं, बेटा वो आपने 1 घंटा पहले, सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन नहीं देखना। तो उसमें भी क्या होता है, आपका वो वाला टाइम, हाँ, जो आप सोए थे
और सॉरी उठे हुए थे और सोने तक में वो जो बीच का टाइम है ना उसको बोलते हैं अल्फा टाइम। उस वक्त आपके माइंड में जो भी है ना वो इतनी जल्दी मैनिफेस्ट होगा। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में आप जैसे ही अभी नींद आपकी खुली है और आप अभी जिसको बोलते हैं ना आप आधी नींद में हैं, तो नींद और उसके खुलने के बीच में वही जो 1 मिनट 2 मिनट का टाइम होगा, उस वक्त आपने जो भी मैनिफेस्ट करा ना 100% वो मैनिफेस्ट होगा। दूसरे मेथड्स यही हैं कि आपने 100 लोगों ने तो 1008 टाइम्स भी वो लिखा, तो आप वो कितने दिन लिखते हैं। और जो भी हम कहते हैं ना हमने वो सूखा हुआ है कि हम वैष्णो देवी जाएंगे या हम नंगे पैर यहाँ इतने 40 डेज जाएंगे, तो वो सब भी इम्पेक्ट करता है। तो आपको जो पसंद है वो कर लीजिए। बाकी ग्रैटिट्यूड सोते वक्त और ग्रैटिट्यूड सुबह उठते ही, जैसे सुबह उठते ही आपने जैसे आँख खुले 5 चीज़ों का ग्रैटिट्यूड किया तो आपने अच्छा किया ना। और बाकी यही हो सकता है मैनिफेस्टेशन में आपको बड़ी कोई ख़ास चीज़ चाहिए तो आप वो बोलते हो कि हे भगवान मुझे ये ज़रूर चाहिए। बस उसके साथ ये चीज़ ज़रूर मैटर करेगी कि आप और क्या काम करें। आप बुराइयाँ कर रहे हैं, आप जैसे मदर इन लॉज के लिए तो ये बोला जाता है ना कि वो जाती हैं, मैं सत्संग में जा रही हूँ लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कीर्तन में जा रही हूँ, और आके अभी घर में घुसे हैं वो चीखना चिल्लाना ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है ये सब शुरू हो जाते हैं, तो वो सारा नलीफाई हो गया। सो वॉट एवर यू हैव डन रॉन्ग विल नलीफाई योर पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव कर्मास, तो वो ज़रूर सीखना है। Okay, okay. So, as Neeraji was talking about thinking positive before sleeping, so I have jotted down some of the pointers that when you talk to yourself, you have to talk positively before sleeping, and even after you wake up, you have to do gratitude practice before sleeping and when you wake up. So these are some of the pointers which look like very small transitions, but if we start practicing, then obviously we will be able to manifest the things which we want in our life. So as we come to end of this conversation, one thing becomes clear, that life isn't just about what happens to us, but how consciously we choose to respond to it, right? So whenever, whether it's through your actions, whether it's through gratitude, whether it's through giving, or simply becoming more aware of our inner world, every small shift creates a ripple. And perhaps that's the essence of this journey, not chasing perfection, but embracing presence, not rushing outcomes, but trusting the alignment. So if today's conversation resonated with you, take a moment to reflect. What is one shift you can begin today? Write down your manifestations, and you can also check out Neeraji's book, which is titled Ripple of Words. So thank you so much, Neeraji, for such a wonderful conversation, and for such an enlightening conversation, I would say. And if today's conversation resonated with you, thank you being for part of Live Babi Sabi journey, where we celebrate beauty of imperfection and power of becoming. So until next time, stay aligned, stay aware, and most importantly, stay true to yourself. Thank you so much, Neeraji, for थैंक यू being सो मच such a शिल्पी, मुझे लगता है powerhouse. कि एक दिन में हमने बहुत कुछ बता दिया। अगर वो सब कुछ फॉलो कर लेना तो पता नहीं क्या बन जाएंगे। बिल्कुल, I think the audience लेकिन is going प्रैक्टिस to be करना पड़ेगा। benefited हाँ, with this. बिल्कुल, बहुत मजा आने वाला है। आगे भी हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना ही है। हाँ। So until then, keep shining and keep थैंक यू सो inspiring. मच। Thank you, Neeraji, so much for थैंक यू सो being मच। such a थैंक यू। थैंक यू।